Good morning student, my name is Shruti Jain and I am your faculty of International Marketing. Hope everyone is doing well at their home and taking care of themselves and their loved one. So in the previous lectures we have discussed what is your international marketing and what are the pros and cons of international marketing, what are the requirements you need to consider before starting a business at international level. In this lecture, this is your unit 4 and this is your last unit. Please prepare this unit very carefully because it seems to be very easy unit, but it's contain a lot of content which is very useful and very interesting if you go through these topics. So in the previous lectures we have discussed what is ethics. Ethics क्या होता है? Basically ethics means treating people the way you want to be treated by them. If they treated the same way the way you are being treated, then how will you feel? So basically we have discussed your ethical issue which a company faced if they are doing a business at international level. Basically when we are talking about ethical and social issues or social responsibility of a company and ethical responsibility of a company, whether it is a domestic company or an international company, they have to consider both the issues because ethics and social responsibilities are the main character by which a company is known. जैसा आप उनके साथ ट्रीट करते हो, जैसे आप उनको ट्रीट करते हो, द सेम वे society will treat you. If you treat them ethically, if you follow your social responsibility, like if I am cutting a tree for some my project, like मैंने कोई भी project के लिए अपना tree को cut करा है, then it's my responsibility to grow double the amount of the tree which I have cut for my project. So एक social responsibility, obviously if any company or if any project or any institute wants to grow or establish in an economy, they have to follow the social responsibility. Basically like we are having a responsibility towards our family, towards our friends, towards our loved one. Same way we are having the responsibility towards our society. Society is also the integral part of any business. So when we are talking about stakeholders are those who are connected with our business. When I am talking about a stockholder, so environment and your society is also related with your stakeholder because society also having a stake in a business and in a company. And so let's start your lecture in this lecture we will be discussing what is the corporate social responsibility. Company की क्या responsibility होती है towards the business, towards the environment and towards the stakeholders. So this is very interesting topic. Like if you want to start your business or if you want to start your company, then these are the points you should remember while starting your business at international level. So let's start your lecture. First we will cover your definition what is CSR means. As you know that CSR is a very important topic these days. आज के टाइम में CSR बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. जो कंपनी CSR एक्टिविटीज़ नहीं मेंटेन करती, दे हैव टू फेस देयर लीगल इश्यूज़. उनको लीगली गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ते हैं. बेसिकली व्हाट CSR मीन्स, लाइक इफ़ आई एम ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी देन आई ओ समथिंग टूवर्ड द सोसाइटीज़. फॉर दिस इसके लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सो बिट्स पिलानी है. पिलानी क्या है? एक पिलानी इंस्टीट्यूट था. उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक गांव को अडॉप्ट कर लिया. पिलानी एक गांव को अडॉप्ट कर लिया और उसका डेवलपमेंट करा और उसको इतना डेवलप कर दिया, उसको कॉलेज को इतना डेवलप कर दिया कि वो पिलानी गांव आज नंबर 1 हो गया. एजुकेशन के लिए वो आज नंबर 1 जाना जाता है. So every institute and every organization have a society towards the organization, towards the environment. They are having a responsibility which they have to follow. CSR basically means social responsibility of a corporate sector, which also means response of the corporate sector towards the society. Basically this means the responsibility of a company towards its society. Like if I am taking something from the society, then it means I have to return that things towards the society. If I am taking resources from the society, then it's my responsibility as a consumer to take care of my society. If I have
if I am operating in a society, then it's my responsibility to maintain my to maintain my society. A company concern and commitment towards society sustainability and development. Basically what sustainability means कि अगर मैं आज अपना कुछ सामान यूज़ कर रही हूँ then I should not over explore the resources. मेरे को ओवर एक्सप्लोर नहीं करना रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करना है कि जो आने वाली मेरी 100 जनरेशन है वो भी उसको यूज़ कर पाए. ये नहीं कि मैं अगर लैंड को यूज़ कर रही हूँ तो उसकी फर्टिलिटी मैं बिल्कुल ही ख़त्म कर दूँ, ये बार बार उस पर ग्रो करे जा रही हूँ, बार बार उस पर ग्रो करे जा रही हूँ. ऑब्वियसली the land will lose its fertility. वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी, अब वो बंजर ज़मीन हो जाएगी, आगे से उस पर कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. सो कंपनी व्हेन आई एम ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी दैन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दैट रिसोर्सेज. CSR इज़ द एथिकल बिहेवियर ऑफ अ कंपनी टूवर्ड्स सोसाइटी. के लिए एथिकल बिहेवियर होता है लाइक ये मेरे एथिक्स. अगर मैं अपने घर में कुछ सामान लेके आ रही हूँ देन इट्स माय एथिक्स कि मैं उसका टेक केयर करती हूँ. मैं अगर अपने घर में कुछ सामान लेके आ रही हूँ मैं उसकी प्रॉपर केयर करती हूँ. उसको अगर मैं कोई प्लांट अपने घर में लगा रही हूँ प्रॉपर उसको वाटर करती हूँ, प्रॉपर उसकी ध्यान रखती हूँ. सेम एज द इंडिविजुअल ऑफ अ सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल हमारे को सिटीज़न के लिए क्या करना है. एज अ सिटीज़न ऑफ दिस इन्वायरमेंट आई हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में मैं रहती हूँ. An idea where a companies integrate economic and social and environmental concern in the business operation. So CSR का मतलब होता है taking care of your environment in which you are operating. So aim क्या होते हैं CSR के? Environmental aim, basically what is my aim is taking care of my environment. Second, what is the main aim of CSR activities? Social and community activities. सोशल एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज़ करनी है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं कि मैंने आज कोई डेवलपमेंट कर दिया वो कल ख़त्म हो गया, नहीं. आई नीड टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट दैट विल सस्टेन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. मतलब मेरी आने वाली जनरेशन भी उस चीज़ को यूज़ कर सके. एथिकल इशू, ट्रीटिंग द पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड बाय देम. मतलब उनको अच्छे से ट्रीट करो. अगर मुझे जितना मेरे को चार्ज करना है उनसे उतना ही चार्ज करो. जो सही प्रॉफिट है वो अर्न करो, अनएथिकल प्रॉफिट नहीं अर्न करना. लाइक अगर हमने आप देखते हैं कोरोना के केस में क्या करा लोगों ने, एक इंजेक्शन जो 700 800 का 900 का इंजेक्शन था वो 7 8 हज़ार में बिक रहा था. दैट इज़ कॉल्ड अनएथिकल बिहेवियर. यू कैन नॉट डू दिस बिकॉज अगर किसी को किसी चीज़ की नीड है तो यू कैन नॉट चार्ज देम एक्स्ट्रा मनी बियॉन्ड योर प्रॉफिट. बिजनेस रिलेशनशिप मतलब होता है मेंटेनिंग अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर, विद योर कॉम्पिटिटर्स एंड विद योर सब कलीग्स. नेक्स्ट वी विल कवरिंग व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ CSR एक्टिविटीज़ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है. टू मैक्सिमाइज द कंपनी आउटरीन इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी एंड स्टेक होल्डर्स. ऑब्वियसली अगर कोई कंपनी सोसाइटी का बहुत अच्छा भला कर रही है, जैसे TCS की बात करते हैं, TCS अगर बहुत ज़्यादा दान दे दिया या लोगों के लिए बहुत सोच रही है या लोगों का बहुत भला कर दिया, दैट इन रिटर्न में क्या मिल रहा है कि टाटा की वजह से, रतन टाटा की वजह से कंपनी का जो गुडविल है, स्टेक है, वो बढ़ रहा है. सो अगर आप किसी का भला करोगे, कुछ अच्छा करने चलोगे तो ऑब्वियसली बात है कि आपका भी इन रिटर्न भला होगा. आपकी क्या होगी, गुडविल अच्छी होगी, आप CSR एक्टिविटी से बचाओगे, आपको टैक्स कम देने पड़ेंगे, आपके ऊपर गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो कम होंगे. सो ये आते हैं हमारे टू गिव बैक टू द कम्युनिटी इन द पास्ट पॉसिबल वे इन रिटर्न टू द रिसोर्सेज. नेक्स्ट आता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंपनी एंड बिल्ड इट्स पब्लिक प्रोफाइल. नेक्स्ट आता है टू सपोर्ट वेरियस कैंपेन ऑन सोशल एंड डेवलपमेंट इशू दैट नीड सपोर्ट्स टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट एज अ पार्ट ऑफ. लाइक अब क्या होता है, महिंद्रा, टाटा होते हैं, वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं. आपको खाली ये नहीं कि पेड़ पौधे लगा दिए तो आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, नहीं. आपको पता है कि कोई छोटा है, अभी किसी ने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, दे नीड गाइडेंस, दे नीड क्या कर रहे हैं, उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनको फंड की ज़रूरत होती है. एज अ बिग एंटरप्रेन्योर अगर हम बड़े एंटरप्रेन्योर की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू सपोर्ट देम, जिसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल बेसिकली होता क्या है,
इन अ सोशल और इन अ स्मॉल वेंचर, छोटे वेंचर्स में जो हमारे बिग जो बिजनेसमैन होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। ऑब्वियसली आप तो स्टैब्लिश हो चुके हैं, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सपोर्ट योर जो छोटे लोग होते हैं उनको सपोर्ट करो, जिनके पास फंड नहीं है, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास आइडिया है, उनके आइडिया को आप बढ़ावा दो, उनके स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करो, उनको एक सपोर्ट दो कि ठीक है आप इन्वेस्ट करो, आप अपना आइडिया लो, पैसा हम लगाएंगे, आपकी बैक के लिए हम हैं। So this is the basic social responsibility which every entrepreneur is should follow, अगर उनको क्या करना है आगे की जनरेशन को खुद एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनवाना है। नेक्स्ट आ जाता है क्या क्या ड्राइविंग फोर्स है CSR के लिए, क्या उनके लोगों को क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। देखा ये किस लिए उगने लगा इंडिया में, CSR एक्टिविटीज़ को इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों देने लगे, जिसे कहते हैं हम, क्यों इतना ज़्यादा पूछने लगे। सो फर्स्ट आ जाता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। जब हमने देखा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं वो बहुत ज़्यादा CSR एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, मतलब या बहुत ज़्यादा फोकस में कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सो एज ए अगर मैं ग्लोबली वर्क कर रही हूँ देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट इन माई कंट्री ऑल्सो। पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ बिजनेस कॉरपोरेशन। पावर आज के टाइम में इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अगर तुमने मेरे साथ कुछ बुरा करा तो देन आई विल हैव अ राइट टू सू यू। अगर किसी को भी के पास राइट होता है किसी को भी सू करने के लिए अगर उसके लिए अगेंस्ट गलत करा गया है। ग्रोथ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। आज के टाइम में हर इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज़, लोगों को सबको अवेयरनेस है। अगर आपने मेरी एरिया में या मेरी लोकेलिटी में एक ऐसा बिजनेस लगा लिया है दैट इज़ वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, देन आई हैव अ राइट, आई एम एजुकेटेड इनफ कि मुझे पता ही गलत है तो आई कैन टेक अ स्टेप अगेंस्ट यू। स्प्रेड कॉर्पोरेट स्कैंडल, मतलब आज के टाइम में क्या हो गया था, देखो जैसे सत्यम स्कैम का, सत्यम स्कैम इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम जो अब तक की इंडिया की हिस्ट्री में हुआ है। सो ये क्या हो रहा था, स्कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। टू अवेयर दिस कि कॉर्पोरेट सोसाइटी की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपने स्टेक होल्डर्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कितना उनके लिए अकाउंटेबल होना है, कितना लायबल होना है। इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग यू आर अकाउंटेबल टू योर स्टेक होल्डर्स। इफ़ यू हैव टेक मनी फ्रॉम योर शेयर होल्डर देन यू आर हैविंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स देम। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉर्पोरेट स्कैंडल्स को बचाने के लिए आज के टाइम में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट आया था हमारा। क्या क्या स्टेजेस होती हैं अगर हम बात करते हैं, स्टेजेस की बात करें तो हम आते हैं मैनेजर्स एंड द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी टू गेट टू नो द मोस्ट कॉमन सोशल प्रॉब्लम एंड देन एक्सप्रेस विलिंगनेस टू टेक पर्टिकुलर और प्रोजेक्ट विच विल सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब सबसे पहले मैनेजर को अवेयर करना पड़ेगा, पहले तो मैनेजर को पता होना चाहिए। इंटेंसिव स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम, अब मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। जब तक मुझे प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो मैं किस चीज़ को सॉल्व कैसे करूँगी। ठीक है, मैनेजर टेक अप द प्रोजेक्ट, मैनेजर कोई प्रोजेक्ट लेता है हमारा बाय हायरिंग एक्सपर्ट्स एंड गेटिंग सजेशन फ्रॉम इट्स टू मेक ऑपरेट। मैनेजर टेक्स अप द प्रोजेक्ट, एक्टिवली वर्क हार्ड, इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट एंड एड्रेसिंग द इशू आ जाता है हमारा। फिर हमारा आता है ये हमारे मॉडल्स, कुछ मॉडल चले थे, जैसे कोका कोला ने वाटर मॉडल करा था, हमारा ये एनर्जी मॉडल करा था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाटा ग्रुप का जो मॉडल था वो आएगा। इसमें अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मार्केटिंग मिक्स मुझे इस तरीके से बनाना है कि मेरा सारा कुछ ऑपरेट हो जाए। एडवर्टाइजिंग मुझे उस तरीके से करना है जो अनएथिकल ना हो। सम ऑफ द फार्मास्यूटिकल, अगर आप कंपनी में आपके कोई ड्रग्स हैं, आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो विच कंटेन ऐसा अनएथिकल प्रोडक्ट, देन यू शुड मेंटेन दैन, यू शुड डिस्क्लोज दैन। प्राइसिंग में आप प्राइसिंग वो चार्ज करोगे जो एथिकल है, ये नहीं आप कोई अनएथिकल प्राइस चार्ज करोगे। सो दिस इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई भी ये चीज़ नहीं फॉलो करता तो इशू क्या होती है, उसकी इमेज डाउन हो जाती है, दे विल हैव टू फेस लीगल इशू फेस करने पड़ते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर इशूज़ फेस बाय कंपनीज। थैंक यू। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मी इन योर Zoom मीटिंग।